Tradition 2. For our group purpose, there is but one ultimate authority, a loving God, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. Where does AA get its direction? Who runs it? This too is a puzzle for every friend and newcomer. When told that our society has no president having authority to govern it, no treasurer who can compel the payment of any dues, no board of directors who can cast an erring member into outer darkness, when indeed no AA can give another a directive and enforce obedience, our friends gasp and exclaim, "This simply can't be. There must be an angle somewhere." These practical folks then read tradition too and learn that the sole authority in AA is a loving God as he may express himself in a group conscience. They dubiously ask an experienced AA member if this really works. This member, sane to all appearances, immediately answers, "Yes, it definitely does." The friends mutter that this looks vague, nebulous, pretty naive to them. Then they commence to watch us with speculative eyes, pick up a fragment of AA's history, and soon have the solid facts. What are these facts of AA life which brought us to this apparently impractical principle? John Doe, a good AA, moves, let us say, to Middletown, USA. Alone now, he reflects that he may not be able to stay sober or even alive unless he passes on to the other alcoholics what was so freely given to him. He feels a spiritual and ethical compulsion because hundreds may be suffering within reach of his help. Then too he misses his home group. He needs other alcoholics as much as they need him. He visits preachers, doctors, editors, policemen and bartenders with the result of with the result that Middletown now has a group and he is the founder. Being the founder, he is at first the boss. Who else could be? Very soon, though, his assumed authority to run everything begins to be shared with the first alcoholics he has helped. At this moment, the benign dictator becomes the chairman of a committee composed of his friends. These are the growing group's hierarchy of service. Self appointed, of course, because there is no other way. In a matter of months, A booms in Middletown. The founder and his friends channel spirituality to newcomers, hire halls, make hospital arrangements, and entreat their wives to brew gallons of coffee. Being on human side, the founder and his friends may bask a little in glory. They say to one another, perhaps it would be a good idea if we continue to keep a firm hand on AA in this town. After all, we are experienced. Besides, look at all the good we have done these trunks. They should be grateful. True, founders and their friends are sometimes wiser and more humble than this. But often, but more often at this stage, they are not. Shall I continue, Push? या ये स्टोरी पूरा खत्म ही करना. Okay. Growing pains now beset the group. Panhandlers panhandle. Lonely hearts pine. Problem descend like an avalanche. Still more important, murmurs are heard in the body politic, which swell into a loud cry. Do these old timers think they can run this group forever? Let's have an election. The founder and his friends are hurt and depressed. They rush from crisis to crisis and from member to member pleading. But it's no use. The revolution is on. The group conscience is about to take over. Now the election. If the founder and his friends have served well, they may, to their surprise, to reinstate it for a time. If, however, they have heavily resisted the rising tide of democracy, they may be summarily beached. In either case, the group now has a so-called rotating committee, very sharply limited in its authority. In no sense whatever can its members govern or direct the group. They are servants. Theirs is the sometimes
thankless privilege of doing the group chores. Headed by the chairman, they look after public relations and arrange meetings. Their treasurer, strictly accountable, takes money from the hat that is passed, banks it, pays the rent and other bills, and makes a regular report at business meetings. The secretary sees that literature is on the table, looks after the phone answering service, answers the mail, and sends out notices of meetings. Such are the simple services that enable the group to function. The committee gives no spiritual advice, judges no one's conduct, issues no order. Every one of them may be promptly eliminated at the next election if they try this. And so they make the belated discovery that they are really servants, not senators. These are universal experiences. Thus, throughout AA does the group conscience decree the term upon which its leader shall serve. थैंक यू चंदू। हिंदी भाषांतर पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से आज लकी नहीं है। Yes, yes, thank you. तो किसी के पास हिंदी है 12th स्टेप 12th एडिशन किताब जो ये ट्रांसलेशन पढ़ सकता है? अगर नहीं तो फिर मैं शेयरिंग करना शुरू करता हूं। तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है और मैं एक शराबी हूं। भगवान की कृपा और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूं। सो अश्विन भाई, मुझे आप स्क्रीन शेयर दे सकते हो क्या? ओके, अलाउ मल्टीपल पार्टनर्स टू शेयर, नो प्रॉब्लम। आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। I didn't know that option. Okay, go ahead. Vishenji, I will take over. ओके, सो भाइयों, ये है हमारी दूसरी ट्रेडिशन फॉर आवर ग्रुप पर्पसेस, यानी समूह के लिए एक ही उच्चतम अथॉरिटी है, ताकत है, पावर है, ए लविंग गॉड एज ही मे एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन आवर ग्रुप कॉन्शियस, यानी एक प्रेमळ ईश्वर जो व्यक्त होता है। क्योंकि प्रेमळ ईश्वर दिखाई कहाँ देगा, सुनाई कहाँ देगा, महसूस कहाँ होगा? ईश्वरीय संकल्पना सिर्फ हमारे मन में होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए एक प्रैक्टिकल टूल दिया, एक प्रैक्टिकल ईश्वर का आवाज कैसे व्यक्त होगा? तो समूह की सत्सद विवेक बुद्धि से व्यक्त होगा। और ये सत्सद विवेक बुद्धि कहाँ पर व्यक्त होगी? तो हमारे ग्रुप की बिजनेस मीटिंग्स में व्यक्त होगी। तो फिर हमारे जो लीडर्स है वो क्या है, लीडर्स का क्या काम है? तो ये जो समूह की सत्सद विवेक बुद्धि से जो प्लान बना है उसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो हमारे लीडर्स को हम लोग देते हैं। सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि दे डू नॉट गवर्न। ओके, तो अगर आप एक ग्रुप पैम्पलेट पढ़ते हो तो पेज नंबर 28-29 पर आपको ग्रुप कॉन्शियस यानी क्या, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ग्रुप कॉन्शियस, कुछ लोग कॉन्शियस करके इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस ये है जागरूक और मूर्छित। लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस यानी सद विवेक बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो द ग्रुप कॉन्शियस is the collective conscience of the group membership and thus represents substantial unanimity on any issue before definitive action is taken। यानी क्या? तो जब भी पूरा समूह, समझो 25 सदस्यों का एक समूह है, यह समूह उसमें एक दिन सोबर मेंबर रहेगा, 50 साल सोबर मेंबर रहेगा, ये हर प्रकार के अलग अलग मेंबर्स वहां पर बैठे रहेंगे। ये सभी मेंबर्स के सामने जब भी ग्रुप कोई भी एक सवाल रखता है और वो सवाल के ऊपर जब भी डिस्कशन होता है और वोटिंग होता है तो वो सब्सटैंशियल यूनानिमिटी यानी कि ज्यादातर मेजॉरिटी से नहीं चलेगा, 51-49 वाले रेशियो में नहीं चलेगा। सब्सटैंशियल यूनानिमिटी यानी कि कम से कम 2/3 लोगों का मत जो है वो निर्णय के बाजू में होगा, वो टाइम पे ही निर्णय लिया जाता है। तो ये कैसे होता है? दिस इज अचीव्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स थ्रू द शेयरिंग ऑफ फुल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ व्यू
and the practice of AA principles. तो नए पुराने सभी मेंबर्स इस विषय के ऊपर जो भी जानकारी है वो पूरी तरह से जब भी देते हैं, अपना हर एक का खुद का मत और अपना अनुभव इस बारे में व्यक्त करते हैं, और परंपरा से हमारे AA के समूह में क्या चलते आ रहा है इसका इतिहास भी जब भी व्यक्त करते हैं, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जब भी मिलती है तो जाके क्या होता है, टू बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू लिसन टू माइनॉरिटी ओपिनियंस विद एन ओपन माइंड। तो ये सभी जब भी ओपिनियंस को मैं सुनता हूं और अपने अंदर की सत विवेक बुद्धि में मेरे फायदे का नहीं, हमारे टीम के फायदे का नहीं, हमारा ग्रुपिज्म का नहीं, लेकिन AA के फायदे का क्या होगा, स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक के फायदे का क्या होगा, सबके लिए यूनिटी बरकरार करने के लिए फायदे का क्या होगा, इन 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 उद्दिष्टों को मध्य रखते हुए जब भी हम लोग हर प्रकार के मत को सुनकर एक निर्णय बनाते हैं तो उसे इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियंस कहा जाता है, यानी पूरी जानकारी के साथ किया हुआ मतदान। सो ऑन सेंसिटिव इश्यूज द ग्रुप वर्क स्लोली। अगर महत्वपूर्ण मुद्दा है तो जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं कि एक ग्रुप है, हमारा रिवाइवल ग्रुप है, जो मंगलवार और गुरुवार 7:30 से 9 ये चल रहा है, पिछले 44 साल से चल रहा है। ओके, अभी अगर ग्रुप में प्रस्ताव आता है कि हमने मीटिंग शनिवार को भी शुरू करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी अच्छा अटेंडेंस होता है, तो तीसरी मीटिंग शुरू करनी चाहिए, तो क्या ख्याल है सबका? अभी सब लोग बोले हाँ 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 चालू कर डालो, चालू कर डालो, अच्छा ही तो काम है, सबके भले का काम है, वैसे भी लोग अच्छे आ रहे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन फिर हम सोचते हैं कि समझो हम लोग ये शनिवार का मीटिंग शुरू करते हैं तो क्या होगा, तो शनिवार के दिन और कौन सी मीटिंग्स हमारे बाजू में है? अरे तो बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे एकता समूह की मीटिंग चलती है। तो अगर हमने शनिवार को मीटिंग वही समय में चालू कर दी तो हो सकता है कि इससे एकता समूह को प्रॉब्लम हो सकती है, शायद वहां पर अटेंडेंस कम हो जाए या पहले वही जो आने वाला है वो अटेंडेंस डिवाइड हो जाए, तो हमने क्या हासिल कर दिया? उससे ये बेटर नहीं होगा क्या कि हम सभी लोग जाके उस दिन एकता समूह की मीटिंग अटेंड करते हैं? तो इस प्रकार के हमारे ग्रुप के, अच्छा हमारे मंगलवार और गुरुवार के ग्रुप को अटेंड करने या चलाने के लिए ऑलरेडी लोग कम है, तो शनिवार की मीटिंग चालू करके हम लोग क्या हासिल करने वाले हैं? कहां से लोग लाने वाले हैं? जिम्मेदारी लेने के लिए कौन तैयार है? तो इन सभी मुद्दों का जब भी प्रैक्टिकल मुद्दा करते हैं, अगल बगल में हमारे डिसीजन का बाकी समूहों के ऊपर क्या असर होगा उसके बारे में विचार करते हैं, तो ये निर्णय लेने के बाद में सिर्फ हम अपना सेल्फ विल लादने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग AA के भले का, स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक के भले का और दूसरे किसी को तकलीफदायक नहीं हो ऐसा निर्णय ले रहे, इसकी जानकारी लेकर जब भी 2/3 मेजॉरिटी से निर्णय होगा वो टाइम पे हम लोग उसे इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियंस कहते हैं। तो कैसा ये कलेक्टिव व्यू इमर्जेस, प्लेसिंग प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज, द मेंबरशिप इज वेरी ऑफ डोमिनेंट ओपिनियंस। अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रुप में मैं और हमारे समझो अपी भाई है, हम लोग 34 और 35 साल से यहाँ पर आ रहे, लकी भाई है जो 30 साल से आ रहे। अब ये हम लोग जो है हम लोग हर प्रकार की सर्विस कर चुके हैं, हम लोग GSO इंटरनेशनल सर्विस भी कर चुके हैं और हमारे खुद के कुछ स्पॉन्सीज भी है। अगर हमारे ग्रुप की बिजनेस मीटिंग चल रही है और मैंने ही पहले ही मत दे दिया कि ये होना चाहिए, तो मेरे मत के खिलाफ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। नया मेंबर बोलेगा अरे इतना पुराना मेंबर बोलता है तो सही बोलता होगा, और वो भूषण भाई के साथ में कौन पंगा लेगा? तो ऐसे जब भी सीनियर मेंबर्स ग्रुप में रहते हैं तो उनको कभी भी पहले मत व्यक्त नहीं करना होता है। इनको कहते हैं डोमिनेंट ओपिनियंस, यानी जो बाकी लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे ओपिनियन जो है वो अंतिम आखिरी में लेने के रहते हैं। पहले हर एक मेंबर जो सबसे नया है वहां से लेके सबसे पुराना है, इस प्रकार से इसे व्यक्त कर दी जाने का है। सो इट्स वॉइस इज हर्ड व्हेन अ वेल इन्फॉर्म्ड ग्रुप अराइव्स एट अ डिसीजन। तो ये सभी
जब भी हम लोग फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति का या एक टीम का इन्फ्लुएंस बाकी लोगों के ऊपर नहीं हो, पॉलिटिक्स नहीं हो, पीठ पीछे निर्णय नहीं हो, इसके लिए हर एक को ओपनली डिस्कस करके माइनॉरिटी ओपिनियन को सुन के 2/3 मेजोरिटी से में जब ये आवाज व्यक्त होती है तो ये आवाज ये ईश्वर की आवाज करके हम लोग मानते हैं. The result rests on more than a yes or no count precisely because it's the spiritual expression of the group conscience. यहाँ पर हाँ या ना का सिर्फ सवाल नहीं है. 51% लोगों ने हाँ बोला और 49 ने ना बोला तो डिसीजन हो गया, मेजोरिटी हो गया, हम लोग इलेक्ट हो गए. ऐसा नहीं है. बिल डब्ल्यू ने बहुत खूबसूरती से कहा है कि सपोज ऐसा होता है कि हम लोग निर्णय इस प्रकार से लेते कि 51 लोग क्या फेवर में जाते और 49 लोग नाराज हो जाते तो हमारी यूनिटी को धोखा हो जाता. सपोज 25 में से 13 लोग बोल रहे हैं कि करने का, 12 लोग बोल रहे हैं नहीं करने का, तो अगर 13 का मेजोरिटी का सुन के आपने अगर करने का डिसाइड किया तो 12 लोग नाराज हो जाएंगे, यहाँ यूनिटी को धोखा होगा और शायद ये ग्रुप टूट जाएगा. तो हमारी यूनिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए हम कोई भी निर्णय लेने की जल्दबाजी नहीं करेंगे. अभी का अभी ये मीटिंग में खत्म कर डालो, नहीं तो अगले मीटिंग पे चला जाएगा, अगले महीने का जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. एए में कोई भी जल्दबाजी करने की, घाई करने की जरूरत नहीं है. सो द टर्म इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियंस implies that pertinent information has been studied and all views have been heard before the group votes. यानी कि एक आध मुद्दा अगर हम निर्णय लेने जा रहे हैं तो उस निर्णय के बारे में जो भी व्यक्त हो सकता है, यह हर मत व्यक्त हो चुका हो, उसके बारे में जो भी बैकग्राउंड है, जो उसका इतिहास है, वो हमको सबको समझ में आया हो, बाकी प्रचलित प्रथाएं क्या है उसकी हमको जानकारी हो, हमारे निर्णय का दूसरे किसी को भी तकलीफ होने वाला नहीं है इसका एहसास हो, और फिर जाके जब भी हम लोग निर्णय लेते हैं तो ये इन्फॉर्म ग्रुप कॉन्शियंस करके बोला जाता है. ये या इसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ ईश्वर का आवाज व्यक्त होता है. तो बिल डब्ल्यू बड़ी खूबसूरती के साथ में चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि जो हमारे मित्र होते हैं उन्हें हमेशा कंफ्यूज लगता है कि यार बिना बॉस के कोई संगठन चल कैसे सकता है, कोई कंपनी चल कैसे सकती है, और वो भी बेवड़े शराबी जो खुद के डिसिप्लिन में कभी डिसिप्लिन उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है. समाज के जो भी लादे हुए नियम थे वो हर नियम को इन्होंने चैलेंज ही किया है. तो ये लोग जाके कल खुद का सेल्फ डिसिप्लिन में ये फेलोशिप चला कैसे सकेंगे, हो ही नहीं सकता है. और जब हमारे में से कोई एक आधा ठीक ठाक दिखने वाला बंदा बोल देता है नहीं ये तो ईश्वर की इच्छा से चलता है, तो लोग बोलते हैं कि कोई मजाक कर रहा है. ईश्वर की इच्छा से थोड़ी कोई चीज होती है. ईश्वर की इच्छा वगैरह वो तो पर्सनल होती है, उसके ऊपर फेलोशिप या कोई कार्यक्रम थोड़ी चल सकता है. तो अगर आसपास में वो पूछते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो जब भी पूछताछ करने लगते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये कैसे कॉन्शियंस काम करता है. तो इसके लिए बिल डब्ल्यू टिपिकल एक स्टोरी बताते हैं कि एए का फॉर्मेशन या एए के ग्रुप कॉन्शियंस यानी इंडिविजुअल ओपिनियन से ग्रुप कॉन्शियंस तक का जो जर्नी है वो कैसे होता है. तो एए में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इलेक्टेड लीडर्स एंड अपॉइंटेड लीडर्स. ओके, तो सेल्फ अपॉइंटेड लीडरशिप वर्सेस इलेक्टेड लीडरशिप. यानी सपोज मैं 34 साल पहले जब भी थाने में आया, वो टाइम पे रिवाइवर ग्रुप बहुत छोटा था, हम लोग 4-5 ही लोग यहाँ पर थे और मैं उसमें से नया था. धीरे 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 कुछ ही दिनों में किसी वजह से हमारे जो सीनियर मेंबर्स थे वो कहीं ना कहीं बिजी हो गए, चले गए, और मैं साल 2 साल में मैं ही वहां का सीनियर मेंबर बनने लगा. धीरे 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 मैं मीटिंग चलाने लगा. धीरे धीरे रिहैब सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले ये लड़के लोग को पकड़ पकड़ कर स्पॉन्सरशिप करके करके हमारा ग्रुप बढ़ने लगा. अब जब ये ग्रुप बढ़ने लगा, ज्यादा नंबर्स आने लगे, तो मैं ही वो ग्रुप का ओल्ड टाइमर था, तो मुझे बहुत सारा महत्व मिलता था.
और मुझे ऐसे लगता था अरे ये इसकी जान तो मैंने बचाई है, इसको संदेशा तो मैंने दिया हुआ है, ये कैसे आया था, इस कंडीशन में आया था मैं जानता हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, यानी मैं ही इन सबका हितचिंतक हूँ, गार्डियन हूँ, मेंटोर हूँ, स्पॉन्सर हूँ, मुझे ही इन सब का ख्याल रखना है। इस प्रकार के विचार मेरे मन में आने लगे। और ये इसी प्रकार से होता है हर जगह पर जहां नया एए का बीज गिरता है और एए की शुरुआत होते है, तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने हेतु कहीं रिहैब्स को जाके मिल, कहीं हॉस्पिटलों में जाके मिल, कहीं डॉक्टरों को जाके मिल, भाई मुझे कोई शराबी दो, मुझे काम करना है, किसी के साथ काम करूंगा तो मैं बचूंगा। तो अपनी जान बचाने हेतु वो काम करता है, 12 स्टेप वर्क करता है, और धीरे 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 समूह बनने लगता है। अब कुछ सालों के बाद नेचुरली जो बाकी मेंबर सोबर हुए हैं, उनके पास भी, उनका भी सत्सद विवेक बुद्धि काम कर रहा होता है, उनको भी एए का अनुभव होता है, वो भी बाकी ग्रुप्स में घूमते हैं और वहां पर देखते हैं अरे बाकी ग्रुप्स में हर साल इलेक्शन होती है और सेक्रेटरी बदली होता है, साला हमारे ग्रुप में तो ये एक दफा पुष्ण कुर्सी में बैठ गया, ये उठने को ही तैयार नहीं। अभी लोगों में थोड़ा सा धुसफुस होने लगता है, यार मुझे भी सेक्रेटरी बनने को अच्छा लगेगा, मुझे भी आईजीआर बनने को अच्छा लगेगा, मैं भी तो मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूं, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, मुझे भी तो लिटरेचर की जानकारी है। और फिर अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ने लगता है और फिर बातें चलने लगती है कि चलो यार ये, बट लेकिन पूषण को कौन मना करेगा, वो जो ओल्ड टाइमर है उसको कौन जाके बात करेगा, वो तो सबका बाप बन के बैठा हुआ है, वो तो सबका गुरु बन के बैठा हुआ है। अभी इसको कौन जाके बताएगा कि भाई जरा हट जा, कुर्सी ढीली कर, हम लोग को भी बैठना है, हम लोग को भी ग्रुप चलने। तो धीरे 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 लोगों के मन में भले इच्छा होती है, लेकिन वो चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन फिर कोई ना कोई एक आधा वहां पर लकी आ जाता है और वो बाकी 4 ग्रुप में घूमते हैं और बोलते हैं यार हर ग्रुप में तो यही सिचुएशन था, लेकिन उनके यहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी आ गई, उनके यहाँ पर कैसे ग्रुप चलता है, एक ही आदमी की दादागिरी कैसे चलेगी। और फिर वो आके वहां पर वो ग्रुप में बोलना चालू करता है कि नहीं अपने को इलेक्शन करना है, इलेक्शन। अब सडनली जो ओल्ड टाइमर है, जो पुशन है वहां उस ग्रुप का, वो बोलना चालू करता है अरे साले तुम लोग को मैंने बचाया, तुम लोग के घर घर में आके तुमको लेके गया मीटिंग को, तुम लोग को साला पैसा नहीं था तो खाना खिलाया, तेरा तो मैंने ये भी किया, तेरा वो किया। मैं किए हुए जो उनके लिए काम है वो काम गिनवाने लगता हूं ताकि ये मेरे ग्रेटिट्यूड में दबे रहे और मुझे इस कुर्सी में से खाली करने को नहीं बोले। क्योंकि अभी इतने सालों में दोबारा मेरा ईगो ऊपर आ गया है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस हूं, जो मैं बोलता हूं वही सही है, जो मैंने इन सब का भला सिर्फ मैं ही जानता हूं, ये अभी मेरे विश्वास हो गए। लेकिन लोगों को पता है कि समूह तो सत्सद विवेक बुद्धि चलता है और सबके सत्सद विवेक बुद्धि से चलता है, ग्रुप कॉन्शियस से चलता है, एक व्यक्ति के कॉन्शियस से नहीं। तो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरे समूह की सत्सद विवेक बुद्धि गलत नहीं हो सकती। धीरे 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 अगर इलेक्शन हो भी जाती है और पहली दफा मैं फिर जाऊंगा, हर एक से, मेरे की माँ से बात करूंगा, बीवी से बात करूंगा, उनको बताऊंगा अरे ये तुम्हारा हस्बैंड ऐसा कर रहा है, अरे तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, देखो। फिर वो घर वालों से भी प्रेशर करके एक आध बार फिर भी मैं इलेक्ट करके हो आऊंगा, वापिस इलेक्शन होगा फिर भी मैं ही जीत के आऊंगा। लेकिन अगले इलेक्शन में नई कमिटी आएगी। अब ये जो कमिटी आएगी, ये कमिटी, ये बड़े नम्रता के साथ में चुनकर आई हुई कमिटी रहेगी। ये सेल्फ अपॉइंटेड लीडरशिप नहीं है, ये अब इलेक्टेड लीडरशिप होगी। और जो इलेक्टेड लीडरशिप होगी वो कोई ओल्ड टाइमर्स की नहीं होगी, वो तो नए लोगों की होगी, वो 2 साल 3 साल 4 साल वालों की होगी। और ये जब भी आएंगे तो ये आएंगे सेवा देने के हेतु आएंगे, ये कोई दादागिरी करने को, बॉसिंग या स्पॉन्सरशिप करने को, या मैं बोलता हूं वही करो नहीं तो गेट आउट, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे। तो ये जो नई लीडरशिप आती है, सेवा हेतु आती है, ग्रुप कॉन्शियस से निर्णय होते हैं और उनको इंप्लीमेंट करने का काम ये लीडरशिप करने लगती है और ग्रुप एकदम तेजी से चलने लगता है, मेंबरशिप बढ़ने लगती है, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर होता है, नए नए लोग सेवा में आने लगते हैं। और फिर मैं वो जो पीछे बैठा हुआ जो आदमी है, जिसने अभी तक इतना मेहनत करके ये ग्रुप को बड़ा किया है, खड़ा किया हुआ है, अब मुझे तकलीफ होने लगती है। बिल डब्ल्यू कहता है कि ऐसी अवस्था में
दो सिचुएशंस आती है, लेकिन वो है, हम थोड़ा सा आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यहां तक हम लोगों ने देखा कि खुद को बचाने हेतु आया हुआ व्यक्ति धीरे 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 जैसे वहां पुराना हो जाता है, वैसे वैसे वो कब्जा कर बैठता है। बट ये कब्जा करके बैठेगा, भले बीडब्ल्यू भी था तो उसको भी अपनी चेयर छोड़नी पड़ी है। उसने भी 1955 में पूरा जो ये फाउंडर होते हुए, फेलोशिप का फाउंडर होते हुए भी उसने सभी अपने जो अधिकार है वो कॉन्फ्रेंस के हवाले दे दिए थे, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि समूह की सतसत विवेक बुद्धि में ही ईश्वर का आवाज व्यक्त होता है। तो हर ग्रुप, हर एक लेवल ऑफ सर्विस जो है वो एक ग्रुप होता है। जैसे आप जानते हो कि एक ए ग्रुप तो ग्रुप ही है, लेकिन जब यहां से हम लोग एक इंटर ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव इंटर ग्रुप में भेज देते हैं, तो इंटर ग्रुप ये भी तो एक ग्रुप ही है। इंटर ग्रुप ये भी सतसत विवेक बुद्धि से ही काम करता है। इंटर ग्रुप में अलग अलग विषयों पर कमिटीज बनेगी, वो हर कमिटी 3, 5, 7 ऐसे मेंबरों की ऑड नंबर में होती है, क्योंकि वो भी एक ग्रुप ही होता है और उसी में भी यही प्रिंसिपल, ये ग्रुप कॉन्शियस के तत्व पर ही निर्णय की प्रक्रिया होती है। वहां से डेलीगेट कॉन्फ्रेंस में जाता है, कॉन्फ्रेंस ये भी एक ग्रुप ही है। कॉन्फ्रेंस के अंदर की कमिटीज भी मल्टीपल ग्रुप्स ही है। जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये भी एक ग्रुप ही है। यानी कि पूरा का पूरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इंडिविजुअल लीडर्स, इंडिविजुअल बॉसेस ऐसे नहीं होते हैं। जो भी निर्णय होते हैं वो समूह की सतसत विवेक बुद्धि की प्रक्रिया से होते हैं। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इलेक्टेड लीडरशिप करते हैं। आगे पढ़िए चंदू। Thank you, Bhushan. Now, this brings us straight to the question: does A have a real leadership? Most emphatically, the answer is yes, notwithstanding the apparent lack of it. Let's turn again to the deposed founder and his friends. What becomes of them? As their grief and anxiety wear away, a subtle change begins. Ultimately, they divide into two classes known in A slant as elder statesmen and bleeding deacons. The elder statement, sorry, the elder statesman is the one who sees the wisdom of the group's decision, who holds no resentment over his reduced status, whose judgment, fortified by considerable experience, is sound, and who is willing to sit quietly on the sidelines, patiently awaiting developments. The bleeding deacon is one who is just as surely convinced that the group cannot get along without him, who constantly connives for connives for re-election to office, and who continues to be consumed with self-pity. A few hemorrhage so badly that drained of all A, spirit and principle, they get drunk. The landscape seems to be littered with bleeding forms. Nearly every old-timer in our society has gone through this process in some degree. Happily, most of them survive and live to become elder statesmen. They become the real and permanent leadership of A. Theirs is the quiet opinion, the sure knowledge and humble example that resolve a crisis. When when sorely perplexed, the group inevitably turns to them for advice. They become the voice of the group conscience. In fact, these are the true voice of Alcoholics Anonymous. They do not drive by mandate, they lead by example. This is the experience which has led us to the conclusion that our group conscience, well advised by its elders, will be in the long run wiser than any single leader. When A was only three. बस Okay. यहाँ पर रुकते थोड़ा। We'll take a pause here. Okay. So ये जब भी ओल्ड टाइमर वहां पर बैठा रहता है कुर्सी में और इलेक्शन हार जाता है,
तो नाराजगी हो जाती है, यार इन लोगों को मैंने अपने हाथ से खिलाया, इन लोग को मैंने घर जा जा के फॉलो अप करके सोबर किया, इन लोग को सारी नौकरी नहीं थी तो मैंने इनके घर में दाल रोटी दी थी, ये सब मैं, और इन लोगों ने मेरे को इलेक्शन में हरा दिया। अभी यहाँ पर ईगो हर्ट हो जाता है ओल्ड टाइमर का। और ऐसे अवस्था में दो चीजें होती है। पहली चीज, यानी वो आदमी इतना डिप्रेशन में आ जाता है, इतना मतलब गुस्से में आ जाता है कि उसके अंदर का जो पुराना जो ड्राई ड्रंक वाला जो सिचुएशन है वो जाग जाता है, वो पॉलिटिक्स करने लगता है, पीछे से बैक बैटिंग करने लगता है, उसको स्पॉन्सर्स को लेके गाली गलौज मारा मारी तक बातें पहुंचती है। आप लोगों ने ये सब चीजें देखा होगा। तो ये सब जो है, इनको जो नाराज है, जो तकलीफ दे रहे हैं, जो जिन्होंने अच्छाई के लिए इतने साल बिताए थे, अभी वो बुराई करने लगते हैं और बुराई चाहने लगते हैं। दीज आर कॉल्ड ब्लीडिंग डीकॉन्स। ये यानी वो खुश नहीं है अपने आप के साथ में, अपने परिस्थिति के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में, बाकी सदस्यों के साथ में, और उनको कुछ भी अच्छाई दिखता नहीं, क्योंकि उनका ईगो ही उनको शांत बैठने नहीं देता है। और कई बार ऐसे लोग शराब भी पी जाते हैं, क्योंकि इतना सब वो उलझ जाते हैं कि जिस एए में सोबराइटी लेने के लिए वो गए थे, उसी एए के झगड़े और पॉलिटिक्स के चक्कर में वो जाके दोबारा एए के बाहर फेंके जाते हैं और शराब पी जाते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे हुआ भी तो भी ये लोग वापिस आ जाते हैं जब भी उनका दिमाग शांत हो जाता है और उनको एग्जैक्टली क्या हुआ ये दिखाई देता है। जब ये ट्रेडिशन के साथ में उनकी पहचान हो जाती है तो वो शांत होकर वापिस आ जाते हैं, क्योंकि अच्छाई तो उनके अंदर थी। इतना सारा मेहनत जो उन्होंने ए के लिए किया था, इतना सारा प्यार जो उन्होंने बाकी सदस्यों में बांटा था, ए के लिए बांटा था, ए के लिटरेचर को सीखने समझने के लिए उन्होंने सालों बिताए थे। तो ये नॉलेज, ये पूरा जो है, एक दफा जब भी एक्सेप्टेंस आ जाता है कि भाई दिस इज दी ए वे, ए का तरीका ये इंडिविजुअल चलाने का नहीं है बल्कि समूह की सतसत विवेक बुद्धि का है, तो ये आकर पीछे बैठना शुरू कर देते हैं, शांति से किसी भी प्रकार का पंगा क्रिएट किए बगैर शांति से बैठने लगते हैं। और फिर ये लोग जो है, ये वो समूह की अनुभव का आवाज होता है। कभी भी समूह में कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो सब नए मेंबर्स इस व्यक्ति की तरफ देखते हैं कि ये अनुभवी व्यक्ति इसमें से सही मार्ग दिखाएगा, और ये व्यक्ति अपना मत नहीं लादता है, मुझे चाहिए वैसे ही करो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अगर किसी ने पूछा तो अपनी राय बताता है, नहीं तो समूह को गलतियां करने का भी अधिकार देता है कि भाई सीखो, आप करके देखो, अगर सही लगा तो आगे करो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो बदल लो। तो इस प्रकार से जो एए का जो ग्रुप कॉन्शियस का प्रोसेस है वो सही ढंग से वो ग्रुप को समझाता है। और ये जो है, कई बार BW कहता है कि समूह का जो पॉपुलर ओपिनियन होता है वो घई घई में लिया जाता है, यानी जो मेजॉरिटी जो निर्णय लेती है। अभी फॉर एग्जांपल समझो, अभी 8 मार्च को रिवाइवर समूह का हमारा 41 इयर्स का बर्थडे होगा। अभी चलो 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 हम लोग नाइट विजिल करते हैं, बड़ा हॉल लेते हैं, 800 लोगों की कैपेसिटी वाला लेते हैं, पूरे महाराष्ट्र में लोग आएंगे, मजा आएगा, अमुक करे तमुक करेंगे, क्या ख्याल है? कोई तो भी एक आइडिया लेके आएगा। सब लोग बोले हाँ हाँ हाँ, बहुत टाइम से हम लोगों ने नाइट विजिल नहीं किया है, चलो करते हैं करते हैं करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जरूर करेंगे, एब्सोल्युटली करना ही चाहिए। अब मेजोरिटी ने निर्णय ले लिया, 2/3 मेजोरिटी ने दिया, इसमें क्या है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या हो सकता है, सबको अच्छा ही है ना, उस बहाने सबके साथ में मुलाकात होगी, अच्छी तो बात है, क्या गड़बड़ क्या हो सकती है। और फिर पीछे बैठा एक आधा जो पुराना मेंबर है वो उठ के बोलता है, अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो 800 मेंबर अगर आएंगे तो ये सब आएंगे, पूरे रात भर यहाँ पर रहेंगे, उनका खाना पीना वो सब देखना पड़ेगा, हॉल का भी तो खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा लगता है? अरे वो तो यार देख लेंगे यार, संभाल लेंगे यार, कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी कितना होगा, चलो देखते हैं। तो 2 टाइम पे चाय होगी, एक टाइम पे बिस्किट होगा, एक आधा सैंडविच होगा, एक लंच एक डिनर होगा,
तो ये समझ डिनर पकड़ते हैं 100 रुपए का, बाकी सब पकड़ के होता है समझो 50 रुपया एक्स्ट्रा, तो 150 रुपया पर पर्सन का खर्चा होगा। हॉल का कितना होगा, दे दे के अपने को ए में वैसे भी सब्सिडाइज मिलता है, 10,000 रुपए में हॉल मिल जाएगा, तो क्या बुरा क्या है। अच्छा, अभी देखते हैं, अगर 100 रुपए में भी हुआ और 800 लोग आए तो 80,000 रुपए का खर्चा प्लस 10,000 रुपए का हॉल का रहना बोल रहे हो, 90,000 रुपया, प्लस अगर साउंड सिस्टम वगैरह सब वो अच्छे क्वालिटी की लाइट्स बीट्स नाइट विजिल करना है, लिटरेचर का स्टॉल वगैरह वो 10,000 रुपया, यानी 1,00,000 रुपए का खर्चा होगा। सडनली सबको रियलाइज होता है, अरे हम बोल क्या रहे हैं, हमने सोचा ही नहीं, इसकी गंभीरता को हमने सोचा नहीं। रिवाइवर ग्रुप में फिलहाल आते हैं सिर्फ 25 मेंबर, अगर 25 मेंबर है और 1,00,000 रुपया करना है तो हर एक मेंबर को कम से कम 4-4 हजार रुपया कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इधर किटी बॉक्स में हर मीटिंग में साला 100 रुपया 200 रुपए के ऊपर सरप्लस नहीं आता है, और 4-4 हजार रुपया डालेगा कौन। सडनली लोग विचार, अरे लेकिन किटी बॉक्स में भी तो पैसा आएगा, अरे किटी बॉक्स घुमाएंगे 3 बार भी घुमाएंगे तो एवरी टाइम कितना पैसा आएगा। एवरेज व्यक्ति किटी बॉक्स में 10 रुपया डालता है, तो अगर 800 रुपया 10 रुपया डालेंगे तो 8,000 रुपया आएगा, 3 बार डालेंगे तो भी 24,000 रुपया आएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा, 20,000 के ऊपर नहीं आएगा, फिर भी बचे हुए 80,000 रुपये कहां से आएंगे। सडनली प्रैक्टिकलिटी, एक्सपीरियंस, और अभी स्कूल पूरे रात भर की परमिशन देता भी नहीं है, और फिर ये 800 लोग आएंगे, इधर आएंगे, उनका आना जाना, उनका रुकना पड़ा किसी को तो उनका रहने बीने का क्या करेंगे। बंबई जैसी जगह में आसान नहीं है। सडनली अभी लोग विचार में आ, हाँ यार बात तो सही है, चलो यार पूरी नाइट विजिल करने के बदले मिनी नाइट विजिल करते हैं, 7 से 11 करेंगे तो कैसा रहेगा। तो भले 2/3 मेजोरिटी से बना हुआ निर्णय भी होगा, लेकिन एक अनुभवी आदमी, ये जो एल्डर स्टेट्समैन वहां पर बैठा हुआ रहता है, जिसने अनुभव देखा है, जिसने ऐसे 20 नाइट विजिल्स देखी हुई है और हर जगह पे डेफिसिट फाइनेंस होते हुए देखा है, और कुछ चंद लोग उसको भरते हुए भी उसने देखा है, उसको मालूम है ये करने से उत्साह में हम लोग निर्णय तो ले लेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होगा। तो BW कहता है कि खाली समूह के सत विवेक बुद्धि कम पूरी नहीं पड़ती, तो समूह के सत विवेक बुद्धि गाइडेड बाय द एल्डर स्टेट्समैन, ये जो हमारी इफेक्टिव लीडरशिप है, ये हमारे लीडर्स है जो सालों से वहां पर पीछे बैठ के शांति से ऑब्जर्व कर रहे, अलग अलग प्रकार के अनुभव लेकर नए आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इनका अनुभव, इनका जो प्यार है, उनका जो श्रद्धा है, उनका जो धीरज है, ये सब कपल्ड विथ दी ग्रुप कॉन्शियस, यानी हमारे समूह के सत विवेक बुद्धि और ये ओल्ड टाइमर्स का मार्गदर्शन, इस तरीके से हमारी निर्णय की प्रक्रिया AA में होती है। अभी आगे पढ़िए। Thank you, Bhushan. When AA was only 3 years old, an event occurred demonstrating this principle. One of the first members of AA, entirely contrary to his own desires, was obliged to conform to group opinion. Here is the story in his word. One day I was doing a 12-step job at a hospital in New York. The proprietor, Charlie, summoned me to his office. Bill, he said, I think it's a shame that you are financially so hard up. All around you, these drunks are getting well and making money, but you are giving this work full time and you are broke. It isn't fair. Charlie fished in his desk and came up with an old financial statement. Handing it to me, he continued, this shows the kind of money the hospital used to make back in 1920s. Thousands of dollars of a month. It should be doing just as well now, and it would, if only you'd help me. So why don't you move your work in here? I'll give you an office, a decent drawing account, and a very healthy slice of the profits. 3 years ago, when my head doctor, Silkworth, began to tell me of the idea of helping drunks by spirituality, I thought it was crackpot stuff. But I have changed my mind. Someday, this bunch of ex-drunks of yours will fill Madison Square Garden, and I don't see why you should starve meanwhile.
Meanwhile, what I proposed is perfectly ethical. You can become a lay therapist and more successful than anybody in the business. I was bowled over. There were a few twinges of conscience until I saw how really ethical Charlie's proposal was. There was nothing wrong whatever with becoming a lay therapist. I thought of Louis coming home exhausted from the department store each day, only to cook supper for a house full of drunks who weren't paying board. I thought of the large sum of money still owing my Wall Street creditors. I thought of a few alcoholic friends who were making as much money as ever. Why shouldn't I do as well they? Although I asked Charlie for a little time to consider it, my own mind was about made up. Racing book to Brooklyn on the subway, I had a seemed flash of divine guidance. It was only a single sentence, but most convincing. In fact, it came right out of the Bible. A voice kept saying to me, "The laborer is worthy of his hire." Arriving home, I found Louis cooking as usual, while three drunks looked hungrily on from the kitchen door. I drew her aside and told the glorious news. She looked interested, but not as excited as I thought should be. It was meeting night, although none of the alcoholics were we boarded seemed to get sober, some others had. With their wives, they crowded into our downstairs parlor. At once I burst into the story of my opportunity. Never shall I forget their impassive faces, and steady gaze they focused upon me. With waning enthusiasm, my tale trailed off to the end. There was a long silence. Almost timidly, one of my friends began to speak. "We know how hard up you are, Bill. It bothers us a lot. We often wondered what we might do about it. But I think I speak for everyone here, and when I say what you now propose bothers us an awful lot more." The speaker's voice grew more confident. "Don't you realize," he went on, "that you can never become a professional? As generous as Charlie has been to us, don't you see that we can't tie this thing up in his hospital or any other? You tell us that Charlie's proposal is ethical. Sure, it's ethical. But what we have got won't run on ethics only. It has to be better. Sure, Charlie's idea is good, but it isn't good enough. This is a matter of life and death, Bill, and nothing but the very best will do." Challengingly, my friends looked at me as their spokesman continued. "Bill, haven't you often said right here in this meeting that sometimes the good is the enemy of the best? Well, this is plain case of it. You can't do this thing to us." So spoke the group conscience. The group was right and I was wrong. The voice on the subway was not the voice of God. Here was the true voice, welling up out of my friends. I listened, and thank God I obeyed. Thank you. तो यहाँ पर बिल डब्ल्यू अपना एक किस्सा बताते हैं, ये स्टोरी बताते हैं। जब ये तो काफी फेमस हो रही थी, लेकिन बिल डब्ल्यू खुद अभी भी गरीब ही थे। सैकड़ों में रिकवरी हो रही थी, नए नए ग्रुप्स खुल रहे थे, लेकिन बिल डब्ल्यू का घर अभी भी चल रहा था। वो लोइस डब्ल्यू का जो वीकली $35 का अलाउंस रहता था, उनका सैलरी था, उसी के ऊपर उनका घर चलता था। और इसमें भी हमेशा घर में एक 3-4 शराबी जिनका घर नहीं था, घर से निकाले गए थे, नौकरी धंधे से निकाले गए थे, ऐसे फुकट में खाने वाले लोग भी हमेशा उनके घर में रहते थे। बिल डब्ल्यू के घर में उन्हीं दिनों पे मीटिंग चलती थी, तो कुछ जो सोबर हुए थे वो लोग, और ये घर में रुके हुए कुछ जो 3-4 जो सोबर अभी तक नहीं हुए थे वो लोग, ऐसे सब मिला के उनके घर में मीटिंग चलती थी। एक दिन ऐसे ही किसी काम से टाउन्स हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू किसी काम से गए थे, और उसका जो ओनर था चार्ल्स बी टाउन उनका नाम था, तो उसको चार्ली बोलते हैं। बिल डब्ल्यू उनके दोस्त बन गए थे अभी तक। तो चार्ली एक दफा उनको बुलाता है और उनको बोलता है कि भाई देख,
कुछ सालों पहले हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता था और अभी फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। लेकिन उन दिनों जब भी विलियम सिलक्वर्थ मुझे बताते थे कि तुम अल्कोहलिक्स के लिए कुछ अलग से प्रोग्राम चालू करो, तो मुझे लग रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये डॉक्टर होके ऐसी बातें कैसे कर रहा है। लेकिन आज मैं समझ चुका हूं कि वो सही थे, मैं गलत था। और वो बोलता है कि मुझे अभी विश्वास है, मैं देख रहा हूं तेरा काम और मुझे विश्वास है कि कल मेडिसिन, मतलब वहां का एक बहुत बड़ा पार्क है, गार्डन है, वो गार्डन भर जाएगा, इतने सदस्य ए में हो जाएंगे। तो और उनमें से कुछ लोग अपना धंधा चालू करेंगे, अपना व्यवसाय चालू करेंगे, अपने नौकरी धंधे पे चालू हो जाएंगे और अच्छी अच्छी प्रगति भी करेंगे, पैसा भी कमाएंगे। लेकिन ये सब करने के पीछे ये सब आइडिया तो तेरा है, लेकिन तू तो गरीब के गरीब ही रहा। लेकिन तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं है। अगर तू ये पूरा का AA का जो काम करता है, ये अगर तू अपने हॉस्पिटल से करेगा, तो मैं तुझे पार्टनरशिप दे देता हूं और हर महीने का अच्छा पैसा भी तेरे को मिलेगा। तो क्या ख्याल है? बिल डब्ल्यू को लगा कि अपनी सभी समस्या, आर्थिक समस्या है, वो खत्म हो गई। फाइनली ईश्वर को अब मेरे ऊपर दया आई, और वो जो कहते ना कि अगर आपने सच्चे दिल से कोई काम किया होगा तो रिवॉर्ड आपको मिलता है। तो उसने यही सोचा कि मैं तन मन धन से जो ये काम कर रहा हूं, उसी का रिवॉर्ड ईश्वर मुझे दे रहा है। तो जो लेबरर इज वर्दी ऑफ द हायर, यानी जो आप जितना मेहनत डालोगे उतना आपको पैसा मिलना ही चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? तो उनको लगा ये विचार, ये जो बाइबल में से एक कहावत उनके दिमाग में चल रही थी जब भी वो ट्रेन में से वापस घर की तरफ आ रहे थे। उनको लगा अपनी सभी समस्याओं का हल हो चुका है, अब मैं फ्री हो चुका हूं। और उनको लगा कि लुइस को जब ये बात सुनाएंगे तो लुइस तो पागल हो जाएगी खुशी के मारे। लुइस अंदर किचन में खाना बना रही थी और वो दो तीन ये जो घर में रहने वाले जो बेवड़े थे, जो अभी तक सोबर नहीं हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कभी खाना तैयार होगा और कुछ खाने को मिलेगा, भूखे थे। बिल डब्ल्यू ने सबको पहले जाके लुइस को अंदर किचन में बात किया, लेकिन उसके पास से कुछ ज्यादा खुशी नजर नहीं आई उसके चेहरे पर। उसने सुन के लिया लेकिन कुछ खास जवाब नहीं दिया। और बिल डब्ल्यू ने बोले, यार क्या प्रॉब्लम क्या है? तो उसने सबको बिठाया और उनको अभी अपने अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके से उनको ये पूरा किस्सा समझाने का प्रयास किया। और ये किस्सा समझाते समझाते वो देख रहे थे कि किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी, आनंद नहीं दिख रहा था, एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी। तो बोलते बोलते उनको समझ में आया कि ये स्टोरी में खाली मैं ही एक्साइटेड हूँ, बाकी कोई एक्साइटेड नहीं हूँ। तो स्टोरी छोड़ दी उन्होंने। और फिर जो सामने बैठे वाले उनके मित्र थे सब, उनमें से एक ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोला कि बिल, हम जानते हैं कि तुम कितनी आर्थिक पीड़ा में हो, तुम्हारा किस प्रकार से घर चलता है, उसके बारे में कई बार हम लोग चर्चा भी करते हैं और इससे हमको चिंता भी होती है कि हम किस प्रकार से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता आज हमें हो रही है ये तुम्हारी कहानी सुनकर, कि अगर तुमने ये पूरा जो आध्यात्मिक काम है वो पैसे के लिए अगर चार्ली को बेच दिया या टाउन्स हॉस्पिटल को तुमने अगर बेच दिया, तो उसके अंदर की आध्यात्मिकता खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि चार्ली ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर में कुछ गलत नहीं है, वो तो बराबर ही एथिकल है, यानी ठीक ही है। वो उसने भी भले, उसके खुद के भले और तुम्हारे भले के लिए ही सोचा हुआ है, उस ऑफर में कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ये कार्यक्रम को टिकाना है, अगर दुनिया तक पहुंचाना है, अगर उसमें से स्वार्थ निकल नहीं जाएगा, तो ये एथिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके लिए हमको बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू ही बिक गया या बढ़ गया तो ये फेलोशिप का खत्म होने में, अंत होने में वक्त नहीं लगेगा। और वो एक स्टेटमेंट कहते हैं कि क्या आपको ख्याल नहीं आता है, यू कैन नेवर बिकम प्रोफेशनल, यानी बिल डब्ल्यू जो ये फेलोशिप के फाउंडर
मेंबर करके जो स्पिरिचुअल जो कार्यक्रम ये दुनिया के सामने लाने वाला आदमी अगर बिक जाएगा, यानी ये प्रोफेशनल हो जाएगा, पैसे के लिए काम करने लगेगा, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो पवित्रता है, ये जो ईश्वर का काम समझकर हम सब लोग कर रहे हैं, वो नहीं रहेगा, वो बात ही नहीं रहेगी। सो हम सब जानते हैं कि तुमको जो मिली हुई ऑफर है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छी ऑफर ये सबसे अच्छे का दुश्मन हो सकती है। सो गुड इज द एनिमी ऑफ द बेस्ट। तू ही तो बोलता है कि जो अभी अच्छा लगता है वो अगर पूरा दूर दृष्टि से विचार किया जाए तो वो खाली एक स्वार्थी चीज होगी, और पूरे कार्यक्रम के, पूरे फेलोशिप के और सफरिंग अल्कोहलिक के फायदे की शायद ये चीज नहीं होगी। तो बिल कहता है कि मैं समझ गया कि जो जो ट्रेन में आते समय मेरे दिमाग में जो आवाज चल रहा था, जो मैं सोच रहा था कि आवाज ईश्वर का है, लेबर इज वर्दी ऑफ दाय हायर, यानी तुम जितना मेहनत करोगे उतना पैसा तुमको मिलना चाहिए, ये जो है बाइबल का वाक्य, ये सिर्फ मेरा स्वार्थ था। और सही ईश्वर की इच्छा ये है कि ये मैं प्रोफेशनली न करते हुए अपने आप को भूल कर, अपने आप को कुर्बान करके मैं ईश्वर का काम समझ के अगर करते रहूंगा तो ही इसकी आध्यात्मिकता बनी रहेगी। इस बात का उसे विश्वास हुआ। तो दोस्तों, आज हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो विश्व भर है और जो हमारे समूह चल रहे, आज हम लोग किसी से पैसा नहीं लेते हैं, हम लोग अपने खर्चे से लोगों के पास जाते हैं, अपना समय देते हैं और नए सदस्यों को मदद करते हैं। देखो, दुनिया में प्रोफेशनल्स बहुत है, अल्कोहलिज्म काउंसलर्स बहुत है जो चार्जेस लेके अपनी सर्विसेज देते हैं, बट दे आर प्रोफेशनल्स। वो प्रोफेशनल्स है, उन्होंने उसका कोर्स किया है, उन्होंने उसको सीखा हुआ है। तो उसके वजह से वो अगर वो व्यवहार करना चाहते हैं, वो व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमेशा नॉन प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। तो हम कोऑपरेट करेंगे प्रोफेशनल्स के साथ में, फिर वो रिहैब सेंटर हो, वो अल्कोहलिज्म काउंसलर हो, या वो हॉस्पिटल हो, या साइकियाट्रिस्ट हो, कोई भी हो, हम सबके साथ में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एए को हम लोग कमर्शियलाइज नहीं करेंगे। एए ये ईश्वर के आवाज पर ईश्वर का काम समझकर ही हम लोग करेंगे। ये जो तत्व है, ये जो दूसरे ट्रेडिशन का जो तत्व है कि अगर हमारा कॉन्शियंस ही शुद्ध नहीं है, अगर हमारे समूह की सत्सत विवेक बुद्धि शुद्ध है, तो वहां ईश्वर की आवाज व्यक्त होगी। और वो जो ईश्वर की आवाज, सत्सत विवेक बुद्धि की जो आवाज है, यही हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस को सैकड़ों साल जिंदा रखने के लिए वो काफी होगी। सो दोस्तों, इसीलिए ट्रेडिशन 2 को द मदर ऑफ सर्विस स्ट्रक्चर, ये जो अभी जो नया ये पूरा जो सर्विस स्ट्रक्चर आगे जाके बना, पूरे विश्व भर में जो आज फैला हुआ है, हर एक देश का है, उसमें सैकड़ों अंतर समूह, सैकड़ों डिस्ट्रिक्ट कमिटीज, जनरल सर्विस, सैकड़ों जनरल सर्विस ऑफिसर्स, और फिर ये सब जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ जो पूरा जो नेटवर्क है, दोस्तों, ये पूरा का जो शुरुआत है, उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है, वो है ईश्वर की इच्छा जो समूह के सत्सत विवेक बुद्धि द्वारा व्यक्त हो। तो बिल डब्ल्यू वहां पर इस ट्रेडिशन का अंत करते हुए बोलते हैं कि I was wrong. The voice on the subway was not the voice of God. Here was the true voice welling up from my friends. I listened and thank God I obeyed. दोस्तों, जब भी हम अपने आप को बहुत ज्यादा सयाना समझने लगते हैं तो कभी कभी हमारे हितचिंतकों ने दिया हुआ सजेशन भी हमको लगता है कि इसको क्या समझता है, मुझे ज्यादा समझता है। कई बार मैं ग्रुप में जाता हूं और मैं जानता हूं कि शायद वो कुछ मेंबर्स मेरे इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, या मेरे इतना दुनिया उन्होंने नहीं देखा होगा, या मेरे इतना उन्होंने प्रोफेशनल एक्सेलेंस कभी नहीं किया होगा।
लेकिन मेरा जो डिलेमा रहता है, मेरा जो डाउट रहता है, मेरी जो तकलीफ रहती है, वो हमेशा स्वार्थ और परमार्थ के बीच के लड़ाई की रहती है। और वो लड़ाई को जीतने के लिए समूह की सतत विवेक बुद्धि हमेशा मेरा साथ देती है। तो मैं जब भी निर्णय लेने जाता हूं तो मेरे मेरे मेरा परिवार ये भी एक मेरे समूह है। मेरा जहां मैं काम करता हूं वो भी मेरा एक समूह है। जो मेरे मित्र है, मेरे हितचिंतक है, वो भी मेरा समूह है। तो मेरे ईगो को न चलाते हुए मेरी जिंदगी को सही ईश्वर की इच्छाओं के ऊपर चलाने के लिए, ग्रुप कॉन्शियस के ऊपर चलाने के लिए, ये अलग अलग समूहों को मैंने मेरे जीवन में निर्माण करना है। और उनके सामने मुझे वल्नरेबल होना है, अपनी अवस्था को जो है उनके सामने व्यक्त करने की तैयारी रखना चाहिए। मुझे याद है कि कुछ 25 साल पहले मेरे लाइफ में एक बड़ा क्राइसिस आया था। और मैं फादर जो परेरा को मिलने गया था और उनको बता रहा था कि ऐसा ऐसा मैं कर बैठा हूँ, ये ऐसी ऐसी तकलीफ है। तो वो बोले जा तेरे एक ग्रुप में और शेयर करना। और मैं बोला, मैं फादर, मैं ट्रस्टी रह चुका हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का, मैं वर्ल्ड सर्विस डेलीगेट रह चुका हूँ। मैंने अगर ऐसी हरकत की करके अगर मैं सबके सामने जाके बोलूंगा तो क्या सोचेंगे लोग। वो बोलते हैं कि गुस्सा हो गए। वो बोलते हैं कि इतने साल के बाद में इतनी सी सिंपल सी चीज तो समझ में नहीं आ पाई है तेरे को कि ए ग्रुप ये वो जगह है जहां पर तेरे को जाके तेरे ईगो को सरेंडर करना है और ईश्वर की इच्छा क्या है वो जानना है। ये समझने के 15 साल की और ट्रस्टीशिप और वर्ल्ड सर्विस के बाद में तेरे को अकल नहीं आई होगी तो व्यर्थ है तेरा ये में जाना, छोड़ दे करके बोल दिया। और मैं जाग गया दोस्तों कि ये जो ट्रेडिशंस है ये सभी ऐसे ही नहीं आए, ये हमारे अनुभव के ऊपर आए हैं। हमारे शुरुआत के सदस्यों ने गलतियां खा के, उसका मार खा के उसमें से सीखा है और ये ट्रेडिशंस को हमारे को पेश किया है। अगर हम उनके पीछे के अर्थ को नहीं समझेंगे कि ईगो डिफ्लेशन एंड डेप्थ खाली स्टेप्स में नहीं होता दोस्तों। स्टेप्स में मैं मेरा इंडिविजुअल ईगो डिफ्लेशन करता हूं, लेकिन मेरे जो सामुदायिक जीवन है, माय लाइफ, माय रिलेशनशिप विथ माय ए ग्रुप, ये जो रिलेशनशिप है, माय रिलेशनशिप विथ ए एज अ होल एंड विथ कम्युनिटी एज अ होल, यहाँ पर जो मेरी नम्रता और ईगो डिफ्लेशन की जो जरूरत है, उसके लिए ट्रेडिशन 2 जैसा सुंदर प्रिंसिपल नहीं है जो मेरे सभी जिंदगी के डायमेंशंस को खूबसूरत बनाने में मेरी मदद करता है। तो यहीं पर हमारी ट्रेडिशन 2 मित्रों खत्म होती है। तो मैं यहाँ पर अपने आप को रोकना चाहूंगा और हमारे पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। तो अगर कोई सवाल है तो हम लोग सवाल ले सकते हैं। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो हम लोग जो ट्रेडिशंस का जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट के सवालों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन पहले अगर आपके कुछ सवाल हो तो उन्हें लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भूषण। दोस्तों प्लीज अपना हाथ उठा सकते हैं आप और सवाल पूछ सकते हैं। Bhushan ji, should we stop the recording now? नो, लेट इट बी। अगर कुछ सवाल रिलेवेंट है तो हम लोग ले सकते हैं। ओके राहुल। हाँ दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, मैं शराबी हूँ। आज किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया, अच्छा लगता है। तो एक सवाल ऐसा था कि जैसे कि कोई एक ही आदमी अभी एक फेलोशिप में 20 साल से मैं हूँ अभी, और वहाँ पे 2-4 ही लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कैसा होता है कि एक ग्रुप का संगठन बन जाता है। पूरे ग्रुप का एक नए नए लोग आते हैं और जूनियर लोग वहाँ पे वो स्पॉन्सरशिप करते हैं और वो एक संगठन बन जाता है, और वो संगठन के इशारे पे पूरा वहाँ का फेलोशिप चलने लग जाता है। और मुझे भी ठीक ही लगता है कि वो लोगों ने मेहनत किया, वो लोग समय दे रहे हैं, तो वो लोगों का यानी उनके हिसाब से ही ये चले तो बढ़िया है। लेकिन ये अपने को बोला एक ट्रेडिशन में कि अल्कोहलिक एनोनिमस संगठन नहीं है, एक
एक ग्रुप कॉन्शियस के ऊपर चलना चाहिए, यानी ओल्ड टाइमरों के विचारों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। और जिसमें भी ऐसा हो कि भाई ओल्ड टाइमर सर्विस किए नहीं है, या फिर वो कीप इट सिंपल वाला थिंकिंग रहता है, तो कुछ ऐसा ऐसा मुझे लगता है, ऐसा होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई संगठन बन रहा है एक जगह, तो वो संगठन के लिए। और एक दूसरा सवाल भी है कि जैसे बिल डब्ल्यू ने जो अभी बात की है आपने कि भाई सेकंड एडिशन में, तो उस समय समय अलग था। तो अभी का जो आदमी ऐसा सोच सकता है कि मेरे को एक विचार आया था, अल्कोहलिक एनोनिमस को बिजनेस नहीं बनाने का है, लेकिन शराबी को मदद करते करते आदमी को पैसा कमाने का विचार आ जाता है, क्योंकि आज का माहौल ऐसा सब जगह बन चुका है। तो वो कहीं पे वो सेकंड एडिशन और जो बिजनेस माइंड जो है अल्कोहलिक एनोनिमस से कैसे आदमी बच सकता है उससे, तो वो दोनों चीजों में माइंड में घर्षण होता है। तो कई लोग वो दूसरी तरफ चले जाते हैं कि भाई काम धंधा नहीं है तो ये कर लो वो कर लो। तो उससे कैसे हमको बचना है और कैसे अपने आप को अपनी आध्यात्मिकता बचानी है बिजनेस से, तो वो मेरे को एक दो सवाल थे। ओके, समझ गए समझ गए थैंक यू सर राहुल। आप? हाँ, बिल्कुल समझ गया। ओके ओके। सबसे पहला जो आपका सवाल था वो है ग्रुपिज्म का। यानी एक आधा ओल्ड टाइमर होता है, उसके स्पॉन्सीज हो जाते हैं, और 4-6 स्पॉन्सीज, और फिर दूसरा ओल्ड टाइमर रहता है, उसके 4-6 स्पॉन्सीज, और ये ग्रुपिज्म हो जाता है। और वो समूह के निर्णय समूह के बाहर चाय के टपरी पर बैठकर लिए जाते हैं, और यहाँ पर आके सिर्फ वोटिंग करके मेजॉरिटी का नौटंकी जो है वो किया जाता है। तो क्या ये सही है, या इसको कैसे रोका जा सकता है? ये पहला सवाल है। सो ग्रुपिज्म के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर अगर ये ट्रेडिशन का तत्व हम लोग समझते हैं, इन्फॉर्म्ड ग्रुप कॉन्शियस, तो कौन से लोग ऐसे बहक जाएंगे जिनको ट्रेडिशंस का ज्ञान नहीं है, जिनको दूसरी ट्रेडिशंस पढ़ने में नहीं आई है, या ये जो कहानी जो यहाँ पर बताई है जिनके कानों पर नहीं पड़ी है, वही लोग ब्लाइंड फेथ में एक ओल्ड टाइमर के पीछे चलेंगे। लेकिन जिस दिन हमारे इस ट्रेडिशन की चर्चा होगी, हर एक समूह में ये स्टोरी बताई जाएगी, ये अनुभव बिल डब्ल्यू का, या जो ब्लीडिंग डिकॉन और एल्डर स्टेट्समैन की जो ये कहानी जो बताई है, वो कहानी अगर हर समूह में बात की जाएगी, बोली जाएगी, और हम लोग अगर अपने अनुभव से, अपने को सभी को मालूम है कि हर एक ग्रुप में ऐसे लोग थे या है, तो फट से नजर के सामने जब भी आ जाते हैं, तो हम भी एजुकेट हो जाते हैं कि इनका साथ देना ये ट्रेडिशन के विरोध में जाने जैसा है। अगर ये ट्रेडिशन ये मेरे लिए ये एक आध्यात्मिक तत्व है, जितना स्टेप्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही ट्रेडिशंस मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं 100% प्योर ए सदस्य हूं, तो मैंने ये ऐसे छोटे मोटे गेम्स जो है ये नहीं खेलने चाहिए, ये समझ में आएगा। और अगर समझो मुझे समझ में नहीं भी आता है, तो धीरे 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 जो ओल्ड टाइमर उसको समझ में नहीं भी आया, तो धीरे धीरे उसके जो स्पॉन्सीज है उनको जब भी जानकारी हो जाएगी, तो उससे वो अलग अलग हटते जाएंगे, और आखिर में वो ओल्ड टाइमर है वो अकेला बचेगा, एक आध दूसरे इग्नोरेंट मेंबर के साथ बचेगा, और उसकी पावर चली जाएगी। क्योंकि ए में पावर है वो सिर्फ तुम्हारे मत की है, तुम्हारे अनुभव की है, तुम्हारे शेयरिंग की है, तुम्हारे प्रेजेंस की है। अगर तुम्हारे पीछे ना लोग है, ना तुम्हारा पास नॉलेज है, ना तुम कुछ ट्रेडिशंस के खिलाफ कर रहे हो, तो तुम्हारे पीछे कोई चलने वाला नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ये जो ग्रुपिज्म है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ट्रेडिशंस का नॉलेज होता है वैसे खत्म हो जाता है। अभी दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा हाँ, सवाल ऐसा है तो कि पैसे के लिए काम करना, पैसे के लिए काम करना। सो बिल डब्ल्यू ने कई सारी आर्टिकल्स लिखी हुई है, और उसमें से एक आर्टिकल है लगभग 1946 के आसपास का है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1945-46 के आसपास ही ये डिटॉक्स सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स, इनकी सबकी शुरुआत हो गई। इसके पहले रिहैब सेंटर्स या डिटॉक्स सेंटर्स या काउंसलर्स या अल्कोहलिज्म काउंसलर्स ये सब कॉन्सेप्ट थे ही नहीं। तो ये सब कॉन्सेप्ट भी आए वो
वो जरूरत में से ही आए, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग 1 घंटा 1.5 घंटा चलती थी, लेकिन वो शराब बंद करने में मदद नहीं कर सकते थे, तो उसमें से डिटॉक्स सेंटर्स आए। फिर कुछ लोग हैं वो ए मीटिंग में भी आकर रुक नहीं पाते थे, उसमें से रिहैब सेंटर्स आए। ऐसे अलग अलग जो ये संकल्पनाएं आई वो उसी में से आई। सो BW कहते हैं कि सपोज आप अगर किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और वहां की अगर यानी अल्कोहलिज्म के लिए आपको किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए और वहां पर एक नर्स आपको अटेंड कर रही है, तो क्या आप चाहोगे कि वो नर्स को ए के बारे में पता हो या नहीं पता हो? सो ऑब्वियसली एवरीबडी सेड कि उसको ए के बारे में पता होगा तो वो ज्यादा अच्छी सर्विस करेगी, उसको एम्पैथी रहेगी, उसको प्यार रहेगा, वो मुझे इसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। एग्जैक्टली। तो बोले वो नर्स ए के बारे में इतना प्यार और ये कैसे होगा, जब वो खुद ए मेंबर होगी तभी होगा ना। तो अगर हमारे सोबर होने के बाद ए मेंबर्स हॉस्पिटलों में काम करते हैं, रिहैब्स में काम करते हैं, या अलग 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 यहाँ पर इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म इसमें अगर काम करते हैं, तो समाज में ए के बारे में ज्यादा प्रेम होगा, आदर होगा, रिस्पेक्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग ए में आने लगेंगे, क्योंकि जो ए से सोबर होके बाहर गए लोग हैं उनकी जो ग्रेटिट्यूड है वो डेफिनेटली लोगों को ए की तरफ ही भेजेंगे। सो इस चक्कर में अगर उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया तो उसमें गलत क्या है? तो बिल्कुल गलत नहीं है। सो जो लोग ए कार्यक्रम यानी 12 स्टेप प्रोग्राम को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, अल्कोहलिज्म काउंसलर बन के या रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल के या डिटॉक्स सेंटर या हाफवे होम खोल के, तो उसमें कोई भी आफत नहीं है। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन आप कर क्या नहीं सकते हो, तो आप ए को कमर्शियलाइज नहीं कर सकते हो। यानी ए में आया हुआ राहुल है जो भूषण को स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रोच करता है, तो मैं स्पॉन्सरशिप के लिए राहुल के पास से महीने के 5,000 रुपये नहीं ले सकता। या मैं अगर राहुल को संदेश देने के लिए उसके घर पे जाता हूं और उसके लिए मैं बोलता हूं भाई गाड़ी भाड़ा मेरा 5,000 रुपया लगा तो दे दे, तो नहीं दोस्तों, वो मैं नहीं कर सकता हूं। तो ए मेंबर ए में ए के मैसेज को, ए के मीटिंग को कमर्शियलाइज नहीं कर सकता। लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में अल्कोहलिज्म के फील्ड में जाकर उसको अगर कुछ काम करना होगा तो वो जरूर कर सकता है, एज लॉन्ग एज उसका अल्कोहलिज्म फील्ड और अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये दोनों एक साथ में नहीं एक दूसरे को तकलीफ देते, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो रिहैब सेंटर खोलता है और ए के ग्रुप में आकर यहाँ के लोगों को रिक्रूट करने का प्रयास करता है कि अरे तेरे को प्रॉब्लम है, आ जा मेरे पास, मैं 20,000 लेता हूँ, तेरे को 10,000 में करवा देता हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि ए के प्लेटफॉर्म का उपयोग वो अपना खुद का धंधा बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो वो गलत होगा। लेकिन अगर वो बाहर अपने सेंटर में 20,000 नहीं 2 लाख रुपए भी लेगा, तो वो उसकी मर्जी, उसका स्किल, उसका टैलेंट, और उसको अगर कस्टमर मिल रहे 2 लाख रुपया देने वाले महीने का, तो वो उसका इशू है, उसको मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ना ए को कोई दिक्कत नहीं है। सो एज भूषण एज ए मेंबर ये कभी भी कोई कमर्शियल काम नहीं करेगा। लेकिन भूषण अपने निजी जीवन में अगर कोई सेंटर खोलना चाहता है तो वो उसका प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज उसकी ए मेंबरशिप और उसका प्रोफेशन एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होते। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, ओके 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 ओके। इसी विषय को ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो गाइडलाइंस फॉर ए मेंबर्स एम्प्लॉयड इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म करके डॉक्यूमेंट है, aa.org पे से आप डाउनलोड कर सकते हो और आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यस, बोलिए अश्विन भाई, आकाश भाई। Akash, Akash, your hand was raised first. Please go ahead. जी, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, मैं एक शराबी हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी काफी बार जब हम लोग मीटिंग रूम में होते हैं तो कोई मेंबर कुछ सवाल पूछ देता है और वो सवाल पूछने की वजह से आखिर में ही सवाल पूछता है, लेकिन सवाल पूछने की वजह से जो मीटिंग रूम का जो एक वातावरण होता है, जैसे कि कोई यहाँ से जवाब दे रहा है, कोई वहां से जवाब दे रहा है,
और जवाब देने के चक्कर में वो सारा को एक मीटिंग रूम का वातावरण पूरा बदल जाता है, और उसके चक्कर में जो एक न्यू कमर वहां पे बैठा हुआ रहता है, तो वो मैंने भी अपने इनिशियल डेज में इसमें देखा है कि एक डर भरा एक वातावरण रहता है, वो एक आवाजें इतनी चल रही होती है कि एक डर डर लगने लगता है। और सबका जो फोकस है वो अपनी पॉइंट में ही रह जाते हैं, और बाकी सब मतलब जो न्यू कमर के ऊपर जो फोकस है वो हट जाता है। तो ये जो चीज है ये नॉर्मल है, ये मतलब ये भी एक कॉन्शियस ही है मतलब ग्रुप का, या फिर यह गलत है? ये शायद सवाल समझ में आया आकाश भाई। सो दो चीजें हैं। जब भी नया सदस्य रहता है और उसको अगर निजी जीवन के कोई सवाल है, तो उसने हमेशा अपने स्पॉन्सर से बात करनी चाहिए। तो हम लोग एए में क्या करते हैं, वी शेयर इन अ जनरल वे। हम लोग एए मीटिंग में सामान्य तौर पर हम शराब पीने के पहले कैसे थे, शराब पीने के दौरान क्या हुआ, और आज हम कैसे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर पर्सनल सवाल है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू वन एंड वन, यानी अपने स्पॉन्सर के साथ में या किसी सीनियर व्यक्ति के साथ में अकेले में बैठ के इनके ऊपर चर्चा करना, ये सही मार्ग बताया जाता है। लेकिन सवाल अगर ग्रुप के बारे में है, ग्रुप के फंक्शनिंग के बारे में है, या एए एज अ होल के बारे में है, या एए में क्या चलता है या क्या नहीं चलता है, या एए के कुछ तत्वों की अधिक जानकारी लेने हेतु अगर पूछे गए हैं, जो पर्सनल स्वरूप के नहीं है, पर्सनल नेचर के नहीं है, तो ये सवाल जो है ये ग्रुप में पूछे जा सकते हैं। और इसके ऊपर जो चर्चा जो होती है, वो चर्चा में से दोनों प्रकार के ओपिनियंस हमें सुनने को मिलते हैं, फॉर एंड अगेंस्ट। हर प्रकार का ओपिनियन हमें अलग अलग मेंबर से उनका पर्सपेक्टिव सुनने मिलता है। यहाँ पर भले आवाज चढ़ा किसी का कम भी हुआ, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बात भी हुआ, फिर भी अगर मेरा पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ इशू नहीं है, तो मुझे डरने का कारण नहीं होता है, क्योंकि वो एए के मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है। तो मैं आई एम नॉट वल्नरेबल वदेर, मेरे को खुद के प्रति डर नहीं लगता है, क्योंकि एए के तत्वों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। यूजुअली बिजनेस मीटिंग में, अगर कोई भी ग्रुप के बिजनेस मीटिंग में आप जाओ, तो ये ऐसा क्रॉस टॉक, अलग अलग स्पीकर्स और जोर जोर से बातें, और ए के प्रति अलग अलग विरोधाभास के अनुभव, ये सब आपको अनुभव करने को मिलेगा। लेकिन सिंस ये आपकी जिंदगी के बारे में या आपकी समस्या के बारे में नहीं है, तो नए मेंबर भी इसमें शामिल हो जाते हैं और वो भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि मेंबर भले नया हो, वो बच्चा नहीं है, उसने दुनियादारी तो देखी हुई है, बाहर के लफड़े झमेले स्वार्थीपना ये सब तो देखा हुआ है। खाली एए में नया है वो, बाकी पूरी दुनियादारी करके तो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। कोई इतना झट से डर जाने वाला ऐसा कोई बच्चा जैसा तो कोई निरागस निर्मल मन का तो कोई शराबी बन के आता नहीं है हमारे पास में। सो प्रॉब्लम कहाँ होता है, अरे मेरी बीवी छोड़ के गई है और वो वापस आएगी कि नहीं, ऐसा अगर सवाल मैं पूछूंगा तो अलग अलग लोग, अबे तूने साले क्या किया है कि वो तेरे पास वापस आएगी करके बोल दिया, तो उससे मुझे बुरा लग सकता है। सो इसलिए पर्सनल नेचर के सवाल हम और ओपन मीटिंग में नहीं पूछते, वन टू वन स्पॉन्सर के साथ या किसी ओल्ड टाइमर के साथ में बात करते हैं। ठीक है आकाश भाई? जी जी जी, थैंक यू भूषण भाई, थैंक यू। ओके, बोलिए अश्विन भाई। जी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है, मैं एक शराबी हूँ। अश्विन, अल्कोहलिक एनोनिमस और ईश्वर की कृपा है आज शराब के पहले जरूर वोट से दूर। भूषण जी, मेरे जिंदगी में 36 साल पुराना एक इंसिडेंट है जिसको काफी हद तक मैं उसके चुभन को भूल चुका हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो आज भी है। तो मैं थोड़ा सा और आपसे उस पे एक मरहम का काम चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये ब्लीडिंग डेकन जो है, ब्लीडिंग डेकन इज समथिंग, वो ग्रुप में अपना अधिकार के लिए संघर्ष करता है। हो सकता है वो बाद में पी लेता है और फिर दोबारा लौट के आता है। ये सब हमने अभी ये ट्रेडिशन के दौरान पढ़ा। मगर 36 साल पहले मैं जिस ग्रुप में था, करीबन 80 लोगों का ग्रुप था,
पूरा ग्रुप तहस नहस हो गया था, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रुप चलाने के मामले में ये था, ग्रुप के मेंबर्स से अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारा कुछ एक्सप्लॉइट किया गया था। कालांतर से मैंने अपनी जिंदगी में वो तो शराब नहीं पिए, वो बिना शराब के एक सोबर जिंदगी वो गुजरे, मगर बाद में ए में वो आ नहीं पाए या उनको आने नहीं दिया गया एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा। लेकिन मैं काफी अर्से तक डरों में रहा उनके साथ, उनके कारण। और एक वक्त आया कि आई सॉ द सेम ट्रेस इन माई सेल्फ। मैं बिल्कुल उसी व्यक्तित्व का एक दूसरा रिफ्लेक्शन था। और बहुत मार खाने के बाद में आई कुड कम बैक इन ए जस्ट बिकॉज आई वॉज केप्ट अलाइव। मगर एक हिच मेरे जीवन में रहता है कि शायद उस वक्त से मैं अगर सोबर हो गया रहता तो द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। बट आज मुझे मालूम है कि द स्टोरी वुड हैव नॉट बीन डिफरेंट, आई वुड हैव बीन डेफिनेटली वेरी एक बहुत ही भयानक ऐसे किस्म का व्यक्ति रहा रहता, या मैंने वो भयानक चीजें सब की रहती जो मैंने मेरे निजी जीवन में की। और कुछ प्रमाण में मेरे हाथ से उस वक्त ए भी हुई, जिसका मैंने बहुत अपने जिंदगी में बहुत मार खाया। दूसरा जो आप जानते हैं कि एक ऑफर मुझे जो आया था अभी थाने में आने के बाद में एज एक इसमें काउंसलर करके, वो उसमें कोई हरकत नहीं थी, मैं जाने का पूर्ण निर्णय लिया था। मगर ये ग्रुप कॉन्शियस मेरे घर के द्वारा आया कि मनी में स्पॉइल्ड अभी की जो पीस है घर का, वो मेरे पास में ज्यादा पैसा आया तो शायद वो घर का पीस ही निकल जाएगा। ये दोनों चीजें एक समूह का ग्रुप कॉन्शियस जो आपने कहा कि समूह में और हायर लेवल में भी समूह होते हैं, वैसे ही मेरे ग्रुप घर में भी मेरे समूह के द्वारा मुझे शायद वो गलत राह पे मैं चले गया रहता, वो रोका गया था। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग डिकॉन तो है, क्योंकि ईगो के ऊपर 100% मात किया हुआ कोई व्यक्ति है ही नहीं। और हम शराबियों में तो 100% नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए हम वो नम्रता और वो गॉड्स ग्रेस और के वजह से कुछ समय के लिए हम अपने आप को आपका परीक्षण करते रहते हैं, 10 स्टेप करते रहते हैं, 11 स्टेप करते रहते हैं और अपने आप को ईगो को काबू में रख सकते हैं। लेकिन ईगो को पूरी तरह से खो देना ये हम में से किसी को भी संभव नहीं हुआ है। इनफैक्ट इट्स अ गॉड्स गिवन थिंग। तो ये 100% 100% जाने के लिए मुझे, जब तक मैं गौतम बुद्ध या कुछ ऐसा नहीं बनता तब तक ये हो नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैं मीटिंग में जाऊं और मुझे कोई इज्जत ना मिले या मुझे शेयरिंग ना मिले या कोई हाय पूषण करके नहीं बोले या मेरे शेयरिंग के ऊपर ताली नहीं मारे, मैं कोई कुर्सी वुर्सी छोड़ने की तो बात आगे की, लेकिन ये सादी सादी चीजों में भी मैं बुरा मान सकता हूं। अरे यार, 4 मीटिंग से जा रहा हूं, एक भी बार शेयरिंग के लिए बुलाया नहीं मेरे को, क्या चल क्या रहा है, इस बात का मुझे बुरा लग सकता है। ताकि शायद वो कुर्सी में बैठा हुआ जो सेक्रेटरी है वो ये सोचता होगा कि यार पूषण भाई को सब लोगों ने ये साल में 50 दफा सुना हुआ है, बाकी लोगों को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, तो मैं बाकी लोगों को अभी एनकरेज कर रहा हूं। ये उसका पर्सपेक्टिव होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा मैं इतनी निष्ठा के साथ में इतने साल के बाद में भी आ रहा हूं और 4 मीटिंग हो गया, तूने मेरे को शेयरिंग नहीं दिया। तो ईगो ये सबकॉन्शियसली कहीं पर भी हमारे जाने अनजाने में झट से ऊपर तो आ ही जाता है। और जहां पर भी हमारे ईगो के खिलाफ होने वाली चीजें है, वहां पर मन में नाराजगी, सबक सिखा दूंगा, साले को दिखा दूंगा, या इससे बात ही नहीं करूंगा, अब ये ग्रुप में ही नहीं जाऊंगा, वगैरह 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 जैसी बातें मन में आना ये स्वाभाविक है। क्योंकि जिंदगी भर मैं एक स्वार्थी इंसान ही रहा था। शराब पीने के बारे में
समय पे एक्सट्रीमली सेल्फिश था, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड था, बट आज भी मेरे अंदर का सेल्फिशनेस गया नहीं। तो ये सब चीजें तो होगी। जब भी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, अधिकार छोड़ना पड़ेगा, मेरे ऊपर लोग, बाकी लोगों को, जब भी आपने देखा होगा इलेक्शंस होती है ए में, एक जो जीत जाता है वो सेवा का पद ले लेता है, और जो हार जाता है वो इलेक्शन में, कई बार आपने देखा होगा कि वापस जिंदगी भर वो इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। अरे ऐसा कैसे होगा? ए में इलेक्शन जीतना यानी कोई नगर सेवक की इलेक्शन या एमएलए एमपी की इलेक्शन जीतना है नहीं। वो इलेक्शन थी ही सेवा की संधि प्राप्त करने के लिए, यानी हर एक का सेवा का अधिकार है। लेकिन मेरा शायद नंबर बाद में लगेगा, शायद मेरे पहले अश्विन भाई का नंबर लगेगा। तो ये जो चीज है, ये ओपननेस होना जरूर चाहिए, लेकिन होता नहीं। एक बार इलेक्शन हारने के बाद मैं सोचता हूं सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और अभी मैं जिंदगी भर खड़ा नहीं रहूंगा, अभी मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। तो ये जो है, ये हमारे सबके अंदर का ब्लीडिंग डिकॉन जो है, वो छोटी बड़ी मात्रा में रहता ही है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बाकी सदस्यों से बात करते हैं, स्पॉन्सर से बात करते हैं, बाकी ओल्ड टाइमर से बात करते हैं, ए का लिटरेचर पढ़ते हैं, तो हमारा ये जो सेल्फ सेंटर्ड वे ऑफ थिंकिंग है, ये हमें दिखाई देने लगता है। हमारे अंदर का साक्षी भाव जाग जाता है और उसे दिखाई देता है, अरे क्या बचकुंडे हरकतें कर रहा है पूछन यार। 34 साल के बाद में तूने 34,000 शेयरिंग किए होंगे, उसके बाद में 4 दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है पूछन यार, बाकी लोगों को कभी मौका मिलेगा। ये पर्सपेक्टिव बाद में आता है, इन हाइंडसेट, इन रेट्रोस्पेक्ट ये पर्सपेक्टिव आता है, और फिर सयानापन आता है। फिर अगर नेक्स्ट टाइम 5वीं दफा बुलाया तो मैं नहीं बोलने के लिए भी मेरे में काबिलियत रहती है कि मुझे शेयरिंग करने के लिए जाने की जरूरत नहीं, मैं जाके शांति से चाय बांटने के लिए भी जा सकता हूं। ये विचार जो है ये बाद में आते हैं। ये विजडम जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मेकिंग मिस्टेक्स ये आता है। सो बिल्कुल ये भले दो एक्सट्रीम दिखाए हैं बिल ने यहाँ पर, एल्डर स्टेट्समैन एंड ब्लीडिंग डिकॉन, लेकिन हर एल्डर स्टेट्समैन पहले कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़े समय के लिए क्यों ना हो ब्लीडिंग डिकॉन जरूर था। उसका एक्सेप्टेंस बेहतर रहेगा तो जाके वो अच्छा से अच्छा एल्डर स्टेट्समैन होगा, और जितना बड़ा ब्लीडिंग डिकॉन होगा उतना ही बढ़िया वो एल्डर स्टेट्समैन बन सकता है, क्योंकि उतनी तीव्रता से उसने वो अनुभव लिए हुए। तो बिल्कुल उसके बारे में चिंता मत करिए। जब भी सही समय आता है तो विजडम भी आता है, वो पेशेंस भी आता है, वो धैर्य भी आता है, और लिटरेचर का अगर मार्गदर्शन साथ में होगा तो हमें दिखाई देता है कि ये करने वाला मैं पहला इडियट नहीं हूं यार। मेरे से 50 साल पहले, 80 साल पहले ये लोगों ने करते आ रहे हैं, और मैं वही साइकिल जो है नेचर की, निसर्ग की साइकिल है, वही मैं भी घुमा रहा हूँ। सो बिल्कुल वहां पर चिंता की बात नहीं। और दूसरा सवाल आपका क्या था? वो जो मैं एक काउंसलर करके एक इसमें जाने वाला हाँ, था, मेरे हाँ, ऑफर आया था, वो मेरे बेटी ने रोक दिया बहुत बराबर। सुन के ये करके। और बाद में उसने कहा कि पापा पैसा तो आएगा, और इसके पहले भी पैसा बहुत आया, मगर जब जब पैसा आपके पास में आया तब तब हमने बहुत तकलीफें ली है, अब तकलीफ लेने की हमारी इच्छा नहीं है, और मुझे रुकना पड़ा वो ऑफर छोड़ देना पड़ा। बराबर। सो बीच में एक एग्जांपल बताता हूँ। कुछ सदस्य मेरे पास आए थे और उनका कहना यह था कि भूषण भाई आप इतनी जगह पे इतना सारा शेयरिंग करते हो, अलग अलग वो इसके ऊपर अभ्यास करके शेयरिंग करते हो, तो आपका एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, और ये यूट्यूब चैनल पे आप ये जो ए के सभी जो अलग अलग जो तत्व है, जो फंडाज है, वो आप शेयर करिए। तो मैं बोला तो मैं तो शेयर करते ही रहता हूँ, और नहीं नहीं वैसे नहीं, तो आप आपका चेहरा दिखाइए, मतलब यूट्यूब वीडियो के तो मैं बोला अगर यूट्यूब वीडियो पे मैं अगर आऊंगा तो मैं मेरी ए मेंबरशिप के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, तो मत कीजिए। ए मेंबरशिप के बारे में बात मत कीजिए। आप एक रोटेरियन करके या एक सोशल वर्कर करके या एक अनुभवी बिजनेसमैन के नाते से आप बताइए, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कॉमन मैन तक पहुंचना चाहिए, और वो यूट्यूब के वीडियोस के द्वारा हम लोग बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, उसको वायरल होगा, लाखों लोगों तक ये संदेशा जाएगा,
और आप ए मेंबरशिप के बारे में बात मत करिए। तो मैं सोचा कि चलो ट्रेडिशंस का नजर रखते हुए इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं अपना नाम पूरा नाम बता रहा हूं, मेरी ए की मेंबरशिप नहीं बता रहा हूं, या मैं ए मेंबर हूं करके नहीं बता रहा हूं, तो फिर मैं अलग अलग ए के तत्वों के ऊपर एक सामाजिक यानी सोशली अवेयर आदमी या एक ए का स्टूडेंट इस नाते से मैं वो बोल सकता हूं। तो मैंने अपने पत्नी को ये बात बताई, मैं बोला ऐसा ऐसा ये लोग ऐसा बता रहे थे कि प्रोफेशनली बनाए यूट्यूब वीडियोस 5 मिनट के 15 मिनट के अलग अलग टॉपिक्स को संक्षिप्त रूप में बताने वाले करेंगे तो क्या हर्जा है, करोड़ों लोगों तक ये संदेशा जा सकता है वगैरह वगैरह। तो उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, मैं जानती हूं कि ये ए की ट्रेडिशन शायद नहीं टूटेंगी, लेकिन क्या तुम्हारे हर ए मेंबर को ये बात समझ में आएगी कि इसमें ट्रेडिशन नहीं टूटी? क्या एनोनिमिटी ट्रेडिशन की इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे ए मेंबर्स में है? क्या वो स्वीकार करेंगे कि जो अनामिकता के बारे में या ट्रेडिशंस के बारे में छाती ठोक ठोक कर ए में आके बात करता है, वो खुद ही जाके यूट्यूब वीडियोस बना के चेहरा दिखा के अपने आप को जो बोल रहा है, भले वो ए मेंबरशिप नहीं बता रहे, लेकिन ये ए मेंबरशिप बताना या नहीं बताना इसके अंतर का अंतर है। ये क्या तुम्हारे पूरे फेलोशिप को मालूम है, और क्या उनको ये मान्य होगा? और मैं जब भी शांति से विचार किया तो मेरे को समझ में आया कि इवन अ परसीव्ड एनोनिमिटी ब्रेक वुड स्टिल एंड अप बीइंग एन एनोनिमिटी ब्रेक। यानी भले मैं ए के किसी तत्व का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जैसे बिल कह रहे थे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, देयर इज नथिंग अनएथिकल अबाउट इट, मैं कोई ट्रेडिशंस वायलेट नहीं करूंगा, लेकिन क्या मेरी जो फेलोशिप है आज जो 40-50 हजार लोग जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य अपने आप को कहलाते हैं, क्या ये सबको ये समझ में आएगा ये अंतर? वो तो यही बोले, अरे वो जो ट्रेडिशन की बड़ी बड़ी बातें करता है वो, अरे उसका तो खुद का यूट्यूब चैनल है, वो तो प्रमोट करता है, ये करता है। क्या ये लोग समझ पाएंगे? अगर नहीं समझ पाएंगे तो तूने क्या हासिल कर लिया? दोस्तों, कई बार इट इज नॉट सिंपल मैटर कि ये सही है या गलत है। कई बार ये मैटर ये होता है कि तुम्हारे लिए शायद ये सही हो, लेकिन लोग तुम्हारी को जिस नजर से देखते हो वो नजर में शायद ये सही नहीं हो। शायद बिल डब्ल्यू वो अगर जॉब ले लेते थे चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल का, तो शायद उनका फाइनेंशियल परिस्थिति वो टाइम पे सुधर जाता था, लेकिन बाकी ये मेंबर्स की नजर में बिल डब्ल्यू जो फाउंडर ऑफ अ फेलोशिप है, जो इतना मतलब उसको जो भगवान का जो दर्जा हम लोग देते हैं, हर मीटिंग में उसका फोटो लगाते हैं, अगर वो एक रिहैब सेंटर का ओनर होता तो क्या हम उसका फोटो हमारी मीटिंग रूम में लगाते थे? ये जो बातें है कि कई बार वो मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था वो हमेशा बोलता था कि पुशान, रोल मॉडल बनना बहुत आसान रहता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि रोल मॉडल बनते 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 सालों लग जाते हैं और लोग तुम्हारी तरफ देख के अपने जीवन को उस प्रकार से मॉडल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर एक चीज तुमने अगर गलत की तो तुम वो सभी लोगों की नजर में गिर जाते हो, और सडनली वो एक गलती तुम्हारे पूरे जिंदगी भर के किए कराए का नुकसान हो सकती है। ये चीजें मैंने जब भी देखी और मैंने रियलाइज किया कि क्या जरूरत है मुझे, अगर मेरी आवाज ही पहुंचानी है तो चेहरा किसी का भी, अनामिकता का प्रिंसिपल ही वो है ना, चेहरा किसी का वो फर्क क्या पड़ता है? अगर आवाज में दम है या तत्व में दम है तो जिनको सुनना है वो तो वैसे भी सुन लेंगे। चेहरा देखने से किसको फर्क पड़ता है? खाली कैमरामैन को, या मेरे को मेरा चेहरा अगर यूट्यूब पर देख पॉपुलर होते देखकर जो ईगो बूस्ट मिलेगा, सिर्फ मेरे को फर्क पड़ता है। शराबी को फर्क पड़ता है क्या कि ये सफेद बाल वाले बुढ़े ने मुझे मैसेज दिया
कि किसी यंग 18 साल वाले ने दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको संदेश से महत्व है, उसको वे आउट से मतलब है, उसको कौन दे रहा है। मैसेंजर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मैसेज इज इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि अश्विन भाई को वो टाइम पे लगा भी होगा कि मेरे पास स्किल है, टैलेंट है और मैं लोगों को मदद कर सकता हूं और उसके प्रति मेरे को कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। ये अश्विन भाई का वो टाइम का टनल विजन है, वो टाइम का नैरो उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन उनकी फैमिली को ये दिखता है कि साला ये पैसे के चक्कर में और रिया में घुस जाएगा तो वापस आएगा कि नहीं, और आएगा तो किस अवस्था में आएगा, और वो बेवड़ों के बीच में ये जाके रहेगा तो ये खुद को सोबर रख पाएगा कि नहीं, इसका भरोसा अभी तक शायद फैमिली को नहीं होगा। और उनको लगता होगा कि जो चल रहा है अच्छा वो चलाना भाई, और नया सर्कस मत कर, जो चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है। सो व्हेन अश्विन भाई ने मना कर दिया, सो ही रिस्पेक्टेड उसका जो ग्रुप कॉन्शियस है, उसके फैमिली का जो ग्रुप कॉन्शियस था कि हमारे हिसाब से अश्विन भाई आप घर में बैठे रहो और ए का काम करते रहो, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है, और उन्होंने मान लिया। सो थैंक गॉड, एज बिल डब्ल्यू सेज, दैट वाज द ग्रुप कॉन्शियस एंड थैंक गॉड आई ओबेड इट। सो हमेशा जब भी कंफ्यूजन होता है कि जो मैं करने जा रहा हूं ये मैं समझता हूं ये सबके हित का है या सिर्फ मेरे हित का है, तो ये सवाल जब भी आप आपके चोजन समूह को पूछोगे कि भाई ये करूंगा तो ये सबके हित का है कि ये सिर्फ मेरे हित का है, आप अपनी सत्सद विवेक बुद्धि से जवाब दो। तो 100% जो चीज आपको लग रही है ना कि ये मैंने करना ही चाहिए, और लोग बोलेंगे यार ये जो है ना ये मत कर, बाकी सब ठीक है। तो कई बार सटनली साइलेंटली मेरा ईगो ऐसा ऊपर आते रहता है, कहीं सबकॉन्शियसली अच्छाई के टॉवेल में लपेटा हुआ आता है, लेकिन वो होता ईगो ही है, और वो कभी कभी अपने को वो टॉवेल फाड़ के फेंक देना पड़ता है दोस्तों। सो आई सपोज, आई होप अश्विन भाई को उनका जवाब मिला हो। सो थैंक यू सो मच। यस भूषण, भूषण एक छोटा सा इंसिडेंट याद आया। इस बार मैं दिवाली में औरंगाबाद में था, और साल में मैं जब भी इंडिया आता हूँ तो 1-2 मीटिंग करता हूँ ग्रुप्स में। तो वहाँ पे दिवाली की छुट्टी थी, उस जो मेजर ओल्ड मेंबर्स थे जो मुझे जानते हैं वो लोग गांव गए थे, तो न्यू कमर चला रहे थे मीटिंग, एक 15-20 लोग, और उनमें से मेरे को कोई पहचानता नहीं। तो मैं जाके बैठा तो सडनली चेयरपर्सन आके मुझसे पूछा है, भाई आप न्यू कमर हो, आप कहाँ से आए हो? तो मैं बोला नहीं न्यू कमर नहीं हूँ, ये मैं हूँ, मेरा नाम चंदू है। ठीक, मेरा पहला ईगो हर्ट उधर हो गया यार, औरंगाबाद में मेरे को पूछ रहा है एक बंदा मेरा नाम। और मीटिंग शुरू होती है दोस्तों, यूजुअली औरंगाबाद में ट्रेंड ये है कि पहले 15 आधा घंटा हम न्यू कमर्स को बुलाते हैं शेयरिंग के, उसके बाद लास्ट में आधे घंटे में ओल्ड टाइमर्स को बुलाते हैं या चंदू जैसे लोगों को बुलाते हैं। यूजुअली ऐसा चलता था, और इस बार सबसे पहला नाम मेरे को बुलाया गया चेयरपर्सन आके शेयर पर, और मेरी डबल ईगो वहां पे चढ़ गई क्वेश्चन। और उस दिन मैं रियलाइज किया कि सच में मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिस इज ईगो रियली। और तब मैं शांत होके अपने आप को 1 मिनट मैं अपना नॉर्मल शेयरिंग किया जितना टाइम दिया था, और उसके बाद में मैं ये चीज हर जगह शेयर करता हूँ कि देखो बेवड़े का दिमाग कैसा चलता है यार। एनीवेज, चंदू, यही जो स्टोरी तूने कही, ये बिल डब्ल्यू का भी कुछ ऐसे ही अनुभव था। बिल डब्ल्यू तो फाउंडर थे, और वो ईस्ट कोस्ट में न्यूयॉर्क में रहते थे, और जब भी ट्रेडिशंस को सबको समझाने के हेतु उन्होंने पूरे अमेरिका की सैर की थी, तो कैलिफोर्निया में एक जगह पर वो एक ग्रुप में गए, और ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, और ये थोड़ा सा लेट पहुंचे और पीछे जाके बैठे। उनको ऐसे लगा कि सब लोग चेहरा देख के पहचान जाएंगे, अरे बिल आया करेंगे, लेकिन किसी ने उनको पहचाना नहीं तो नहीं। एक जन आया, उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो बोले, मैं अंदर ही अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी उठ के बताऊं उनको कि मैं बिल डब्ल्यू हूं, या मैं ये एक्सेप्ट करूं कि उनके लिए तो मैं न्यू कमर ही हूं। सो और इस अवस्था में वो जो तू जो बोल रहा है वो ईगो कॉन्फ्लिक्ट की, यार मैं तो फाउंडर हूं ये फेलोशिप का, और मेरे को यहाँ पर कोई पहचानता नहीं है, तो उसको कितना बड़ा क्राइसिस हुआ होगा। बट वो कहते हैं कि
मैं वो 5 मिनट शांति से बैठा और लोइस भी उनके साथ में थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे एंड दोनों ने सोचा कि एज ए न्यू कमर अपने को किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है देखते तो है। अंत में किसी न किसी ने उनको पहचान लिया और बाद में अलग सब चीज हो गया। बट दिस हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ अस, हर एक को ये होता है। इसके लिए कहे जाते ना कि यू टू रिमेन रिलेवेंट यू नीड टू रिमेन करंट। तो आपको बार बार औरंगाबाद की मीटिंग्स करती रहनी पड़ेगी, तो ही आप रिलेवेंट रहेंगे, चंदू भाई बने रहेंगे, नहीं तो चंदिया न्यू कमर बन के ही आपको जाना पड़ेगा वहां पर। थैंक यू दोस्तों। इस मीटिंग का समय हो चुका है। आप सबका धन्यवाद दोस्तों। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे शुक्रवार को सेम 9 से 10:30 बजे रिवाइवल ग्रुप की ऑनलाइन ए मीटिंग में, जिसमें हम ट्रेडिशन 3 लेंगे। मैं अपने सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया अनम्यूट कीजिए और हम सेरेनिटी प्रेयर लेते हैं। वी वर्शन गॉड grant us the serenity to accept the things we cannot change, courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. Thank you all. Thank you.